if anyone is in Christ, he is a new creation. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है. Old things have passed away. Behold, all things have become new. पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई. There's so much to learn in this verse. कितना कुछ सीखने को इस पद में है. If anyone is in Christ, अगर कोई भी मसीह में है, he's a new creation. वो एक नई सृष्टि है. And then the scripture says, और तब वचन कहता है behold, कि देखो, behold. रुको और देखो. When you put your faith in Christ, जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं, what happens to you? क्या होता है आपके साथ? You are born again. आप नया जन्म पाते हैं. In the Gospel of John, chapter 3, Jesus told Nicodemus, unless one is born again, he cannot see God. यूहन्ना के 3 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं निकोदेमुस से कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले वो परमेश्वर को नहीं देख सकता. He said, first you must be born of water, पहले तुम्हें जल में से जन्म लेना होगा, which is natural birth. जो कि स्वाभाविक जन्म है. Then you must be born of the Spirit. फिर तुम्हें आत्मा से जन्म लेना होगा. Only then can you तभी तुम see. परमेश्वर को देख सकते हो. See with your eyes. अपनी आंखों से देख सकते हो God. परमेश्वर को. If Adam was born from the Spirit, अगर आदम आत्मा से जन्मा था, if his first birth was a spiritual birth, अगर उसका पहला जो जन्म था वो आत्मा में से जन्मा था, and if his born again experience was from the Spirit to death, और जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वो आत्मा से मृत्यु में जन्म लिया उसने. for you and me, आपके और मेरे लिए see what God does. देखे परमेश्वर ने क्या किया. Through Jesus Christ, मसीह यीशु के द्वारा once we are born into this world, जैसे हम इस संसार में जन्म लेते we हैं, are first born in the natural. हम सबसे पहले स्वाभाविक रीति से जन्म लेते हैं. But once we put our faith in Jesus, पर जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, through the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, from above, ऊपर से by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा we are born again हम दोबारा जन्म लेते हैं. from the natural स्वाभाविक से into the Spirit. आत्मिक में. It's the opposite of how it functioned in Adam. जैसा आदम में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ होता है. Hallelujah. So Hallelujah. notice what God is doing. तो ध्यान दे परमेश्वर क्या कर रहे हैं. God through His Holy Spirit परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा is now returning mankind back to his former glory. वो परमेश्वर अपनी पुरानी महिमा में ही वापस आदम को रख रहे हैं. Through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, in Jesus, यीशु मसीह में you and I are born from the natural into the Spirit. आप और मैं स्वाभाविक संसार से आत्मा में जन्म लेते That's हैं. what the scripture says. If anyone is in Christ, यही वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है, the key is in Christ. कुंजी मसीह में है. In Christ, we become a new creation, मसीह में हम एक नई सृष्टि है. which means a new species. इसका मतलब है कि एक नया तरह के व्यक्ति. And you know what's the peculiarity of this species? देखिए इस प्रजाति की खासियत क्या है. The species is recreated by the Holy Spirit in such a manner that this new species can carry the presence of God here on earth. ये नई प्रजाति पवित्र आत्मा इस तरह से बनाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को एक बार फिर से लिए चले. When Adam and Eve sinned, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, the glory that covered them was lifted. वो महिमा जिसने उन्हें ढांपा हुआ था वो उनके ऊपर से उठ गया. When you put your faith in Jesus, जब आपने मसीह यीशु पर विश्वास when you किया, are born from the natural into the Spirit, जब आप स्वाभाविक से आत्मिक में आपने जन्म लिया, the first thing that happens to you, पहली चीज जो आपके साथ होती है, the glory of God comes into your spirit. परमेश्वर की महिमा एक बार फिर से आपकी आत्मा में आती That's why है. the scripture says, Christ in you, the hope of glory. इसलिए वचन कहता है कि मसीह आशा की महिमा आपके भीतर है. Hallelujah. हालेलुया. Oh, we don't have time. Otherwise, I would have spoken much on this. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत सी बातें करता. Now we are born into the Spirit. अब हम आत्मा में जन्म ले चुके हैं. The glory of God through Christ comes into this recreated human spirit. परमेश्वर की आशा की महिमा मसीह में हमारे नई जन्मी आत्मा में आती है और वास करती है. We can be earthen vessels that carry this glory. हम एक
ऐसे पात्र हैं इस पृथ्वी के जो परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हैं। What happened to Adam when he sinned? जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? He lost sight of the spirit realm and his eyes was fully opened into the natural. उसने आत्मिक संसार को देखने की क्षमता को खो दिया था। But now, पर अब once we are born into the spirit, जब हम आत्मा में वापस जन्म ले चुके हैं, receive the glory of God through Christ into our spirit. हम मसीह से परमेश्वर की महिमा को वापस अपनी आत्मा में पा चुके You हैं। know what God tells you? पता है परमेश्वर आपसे क्या कहता है? I, through my Holy Spirit, have enabled you to now open your eyes and see into the spirit. And God tells you, behold. परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें वापस से क्षमता दी है कि तुम आत्मिक आयाम में देख सको। और वो कहता है देखो। He says, behold. वो कहता है देखो, All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं, All things have become new. सब कुछ नया हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So God, through Jesus, is restoring us back into the former glory. तो परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें वापस से अपनी उसी महिमा में वापस स्थापित कर रहा है। I want to close with this. मैं इससे समाप्त करना चाहूंगा। When you fall into sin today, जब आज आप पाप में पड़ते हैं, if you fall into sin today, अगर आप आज पाप में पड़ते हैं, young people, I want to tell you, जवान भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, where are all the young people? कहाँ हैं जवान भाई बहन? Can I see all the young hands? क्या मैं आप सभी के हाथों को देख सकता हूँ जो जवान हैं? Sab jawan. सब जवान हैं। Amen. मैं भी जवान है. मैं भी जवान हूँ। Bahum. You know, when we all fall into sin, if we fall into sin, जब कभी हम पाप में पड़ते हैं, अगर हम पाप में पड़े, you know what sin does? पता है पाप क्या करता है? It brings fear. वो भय को लाता है। It wants to pull you away from God. वो आपको परमेश्वर से दूर खींचना चाहता है। If you fall into sin, अगर आप पाप में पड़ते हैं, sin will speak to you. पाप आपसे कहेगा, God will not forgive you. परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। God hates you. परमेश्वर तुमसे नफरत करता है। Sin will bring fear. पाप आपके भीतर भय को लाएगा। You know what it will do? पता है वो क्या करेगा? It will bring condemnation. वो आप में दोष को लाएगा। It will pull you away वो आपको दूर खींचेगा from God. परमेश्वर से, Far away from God. और दूर परमेश्वर से खींचेगा वो। As a child of God, परमेश्वर के संतान होने के नाते when you fall into sin, जब आप पाप में पड़ते हैं, you know what God tells you? पता है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? Just like he called Adam, Adam, where are you? वो जैसे आदम को पुकारा, उसने आदम कहाँ है तू? When you sin, जब आप पाप करते हो, your God will call you. परमेश्वर आपको पुकारता है, Donnie, डॉनी where are you? कहाँ हो तुम? Sister Lata, बहन लता, where are you? आप कहाँ हो? Where are you? आप कहाँ हो? Sankita, बहन संगीता, आप कहाँ हो? where are you? कहाँ हो आप? Usha, Usha, बहन उषा, where are you? आप कहाँ हो? When you fall into sin, जब आप पाप में गिरते हो, the devil will come and tell you, दुष्ट आएगा और आपको बताएगा God hates you. कि परमेश्वर तुमसे नफरत करता है, He has given up on you. उसने तुमसे हार मान ली है। Young people, when you fall into sin, जब जवान भाई बहन आप पाप में गिरते हैं, Jesus hates you. यीशु आपसे नफरत करता है। Understand, Jesus tells you, समझे, यीशु आपसे कहता है, पर no matter how much you fall into sin, तुम कितना भी पाप में क्यों ना गिर जाओ, come back. वापस आ जाओ। God says, परमेश्वर कहता है, in Christ my son, मसीह में मेरे पुत्र, behold, देखो there is a place for you. एक स्थान है तुम्हारे लिए, Because in your spirit, क्योंकि आत्मा में you are my child. तुम मेरी संतान हो। Yes, you have fallen into sin, हाँ, तुम पाप में गिरे, but your spirit पर तुम्हारा आत्मा is born of my spirit. वो मेरी आत्मा से जन्मा है। Your father is not the devil, it is me. तुम्हारा पिता दुष्ट नहीं है, बल्कि मैं हूँ। So even if you fall into sin, तो चाहे तुम पाप में ही क्यों ना गिरो, don't run away. भागो मत मुझसे, Don't hide. मुझसे छुपो मत, Come to my son. मेरे पास आओ मेरे पुत्र। Behold, देखो in him उसमें there is forgiveness. वहाँ क्षमा है। Hallelujah. हालेलुया। Second, दूसरा, I don't have time, but I tell you this. मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बताऊंगा। When you get a doctor's report अब अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को पाते हैं, saying you cannot be healed, जो कह रही है कि आप चंगे ही नहीं हो सकते, when you get a bad report जब आपको एक बुरी खबर मिली,
that there is no hope for your husband, your children, कि आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई आशा नहीं है, when you get to know that you have a sickness, जब आपको पता चला कि एक बीमारी है आपको, when you get to know that there is a big storm in your life, जब आपको पता चला कि एक बड़ा तूफान आंधी आपके जीवन में आई है, the devil will come and speak to your ear. दुष्ट आएगा और वो आपके कान में कहेगा, The miracle will never happen. वो आश्चर्य कर्म कभी नहीं होगा। At that moment, उस पल में when you get caught up with so much of worry, जब आप इतनी सारी चिंताओं में फंसे हो, उलझे हुए हो, when you get caught up with so much of fear, जब आप इतने सारे भय में उलझे हुए हो, you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? That's the enemy वो दुष्ट है, वो शत्रु है, drawing you away जो आपको खींच रहा है परमेश्वर से अलग, from God, परमेश्वर से अलग, drawing you away वो आपको खींच रहा है out of fear, भय के द्वारा, fear of cancer, कैंसर के भय के fear द्वारा, of sickness, बीमारी के भय के द्वारा, so much of fear. इतना सारा भय। God tells you, परमेश्वर आपसे कहता है, Lata, बहन लता, बहन उषा, Sister Usha, बहन संगीता, Sangeeta, बहन yeah, मीनू, exactly, sorry, Meenu, बहन मीनू, where are you? कहाँ हो आप? Come to Jesus. मसीह के पास आओ, In Him, उसमें you can be healed. तुम चंगे हो सकते हो, In Him, उसमें the glory is available to heal you. उसकी महिमा आपके लिए उपलब्ध है कि आप चंगे हो। Don't let fear draw you away. भय आपको अलग खींचने ना पाए। Jesus, God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, behold, देखो, open your eyes अपनी आंखों को खोलो and see in Jesus, और मसीह में देखो, you can be healed. आप चंगे हो सकते हो। In Jesus, मसीह में you can have your need met. आप अपनी जरूरतों को पूरा होते देख सकते हो। You don't have to do it through the natural. आपको स्वाभाविक चीजों से करने की जरूरत नहीं है। In Jesus Christ, मसीह यीशु में if you can open your eyes and see, अगर आप अपनी आंखों को खोलकर देख सकते हैं, the healing power of God will come and touch वो you. परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य आएगी और आपको स्पर्शित करेगी। God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, when sickness comes, जब बीमारी आती है, when pain comes, जब दर्द आता है, come to Christ. मेरे पास आओ। Stand up. खड़े हो जाओ। Let's all pray together.